سب کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر آفس کا کام کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو رخ بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اف اتنی دیر لگا دی آپ نے، آج کیا کر رہے تھے آفس میں؟ اس کے آتے ہی روح نے سوال پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ کام تھا۔ تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں نے ابھی تک میڈیسن نہیں کھائی اور نہ ہی میں نے کھانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ لیلا نے بہت کوشش کی مجھے زبردستی دینے کی، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے آپ کھلانے والے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ تو اتنی ڈرپوک ہے، اتنا ڈرتی ہے آپ سے، فوراً میری بات پر یقین کر لیا اور اب میری میڈیسن دور کہیں کمرے کے باہر گم ہو گئی ہیں اور آپ کو میں جانے نہیں دوں گی لانے کے لیے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن بیبی، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ اور اگر تم ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم اپنے سیکنڈ ہنی مون پر کیسے چلیں گے؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھ کر پوچھنے لگا اور وہ سوالیہ انداز میں اپنا پاسپورٹ دیکھنے لگی۔ یارم، ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ اس سے تو اگلے مہینے کی 14 تاریخ کی ڈیٹ ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو، وہ سوالیہ انداز میں پاسپورٹ اٹھائے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں میری جان، ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں اپنے سیکنڈ ہنی مون پر، لیکن اس فلیٹ کی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں بیمار لوگ نہیں جا سکتے۔ ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق کسی بھی بیمار کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو پھر ایک ہی مسافر کو بھیج دیا جائے گا۔ مطلب کہ اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ لوگ مجھے سوئٹزرلینڈ بھیج دیں گے اور شاید تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ لیکن تم یہاں میرے بغیر اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن دوائیاں تو تم کھاتی نہیں ہو، تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ آج تو دوائیاں تمہاری گم ہو گئی ہیں باہر کہیں دور۔ ویسے سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے اور وہاں کے نظارے بھی بہت خوبصورت ہیں، جیسے آئس لینڈ میں دیکھے تھے نا، کچھ ویسے ہی۔ استغفر اللہ یارم، آپ وہاں آدھی برہنہ عورتیں دیکھیں گے؟ رخ نے صدمے سے چیخ کر کہا تھا۔ آدھی نہیں بیگم، یہاں تو شاید نظارے مکمل دیکھنے کو ملیں گے، اور یہاں تو کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، میں ویسے بھی تمہیں نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ تمہیں ایسی جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ رخ کو اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اس کی پناہوں سے دور ہوئی تھی۔ میں میڈیسن ڈھونڈ کے لاتی ہوں، میں کھاؤں گی اور ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر ان دونوں ساتھ چلیں گے۔ خبردار جو اکیلے جانے کے بارے میں سوچا، وہ بھی ایسے گندے ماحول میں۔ میں ابھی آتی ہوں، وہاں جا کر عورتوں کو دیکھیں گے، اسی لیے تو میرے بغیر جانا چاہتے ہیں۔ میں ہوں گی تو آپ کی ایسی پلاننگ پوری۔ وہ باہر آ کر اونچی اونچی آواز میں بڑبڑاتی اپنی چھپائی ہوئی میڈیسن ڈھونڈنے لگی، جبکہ یارم پرسکون تھا۔ وہ دوائی کھا کر اب مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے اسے سوال کر رہی تھی۔ یارم، یہ سوئٹزرلینڈ اور آئس لینڈ دونوں بہن بھائی ہیں کیا؟ اس کے بے تکے سوال پر وہ سمجھ گیا تھا کہ دوائی اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ واہ بیگم واہ، دو الگ الگ ملکوں کی رشتہ داری بھی نکال لی۔ مجھے تو لگتا ہے تم صرف کتے اور انسانوں کے تعلقات بنانے میں ماہر ہو۔ خیر، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ سوئٹزرلینڈ اور آئس لینڈ کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن یہ دونوں مغربی ملک ہیں، ان دونوں ممالک کا شرم و حیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ پرسکون انداز میں جواب دیتا روح کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یارم، آپ ان عورتوں کو مت دیکھیے گا، پتہ نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے کیسے پہن لیتے ہیں۔ اپنی نسیں جھکا کر چلیے گا، ہم باہر ہی نہیں نکلیں گے، ہوٹل کے اندر ہی رہیں گے۔ وہ انتہائی معصومیت سے سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہنے لگی تو یارم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ کھلی تھی۔ کیوں نہیں بیبی، میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لوں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے شرارت سے کہا تو رخ نے سر اٹھا کر زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ والا آئیڈیا سب سے اچھا ہے، وہ کہتے ہوئے دوبارہ سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ اگلے مہینے کی 12 تاریخ روح کا یہ کورس مکمل ہونے والا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے کے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ اس نے پہلے ہی بک کروا لیے تھے اور اب روح کے ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا، جس میں وہ ہوگا، اس کی روح ہوگی اور ایک نیا سفر شروع ہوگا، اور اس سفر میں اس کی روح بزدل نہیں ہوگی۔ وہ روح کو دنیا سے مقابلہ کرنا سکھائے گا، اس کے لیے نہیں، اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی روح بہادر بنے۔ اٹھ جائیں نا یارم، اور کتنا سوئیں گے؟ کیا آپ مجھے بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں ناشتہ نہ کروں، دوائی نہ کھاؤں، اور اب آپ وہاں آئس لینڈ کی بہن کے پاس جا کر لڑکیاں تاریں۔ کان کھول کر سن لیں آپ، ایسے میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ میں بتا رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گی تو مطلب ساتھ چلوں گی۔ جلدی سے اٹھو اور مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ اگر میں نے خود بنا کر کھایا نا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، پھر آپ مجھ پر بیکار میں غصہ ہوں گے، اور خود مجھے کچھ کھانے کو دے نہیں رہے۔ وہ مسلسل سے جھنجھوڑتے ہوئے تقریر کر رہی تھی جب یارم نے ایک آنکھ کھولی اور پہلی گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 5:30 بجے بجائی جا رہی تھی۔ بیبی، ابھی ناشتے کا وقت نہیں ہوا، میری جان سو جاؤ، وہ پیار سے اسے اپنے پاس بلاتا ہوا کہنے لگا، جب رخ نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، آپ اٹھیں اور مجھے ناشتہ بنا کر دیں تاکہ میں دوائی کھا کر ٹھیک ہو سکوں۔ مجھے کسی بھی حال میں 14 تاریخ تک ٹھیک ہونا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، یاد رکھیے گا، آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی ان چڑیلوں کے پاس۔ رخ اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ یارم مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ پلان ضرور کامیاب ہوگا، لیکن اتنا زیادہ کام کرے گا یہ اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ میں ناشتہ بنا کر لاتا ہوں، اتنا مت سوچو، میں ہرگز تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔
होगा। वो नरमी से इसके गाल थपथपाता उठकर बाहर निकला था, जबकि रुख मुंह बनाए इसके पीछे पीछे ही आई थी। अभी तक तो इसे आइसलैंड के नज़ारे नहीं भूले थे कि अब वो इसकी बहन के नज़ारे बर्दाश्त करती, और ऊपर से यारम का ये कहना कि फुल मकरबी माहौल है, वहाँ वो किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद रख ही नहीं सकती थी। यारम 14 तारीख तो आ ही रही है, हमें पहले शॉपिंग भी करनी होगी, आपके और सोनू के कपड़े भी लेने हैं, मुझे अपनी भी कुछ चीज़ें लेनी है, वो इसके पीछे आते हुए बोली थी। सोनू मासूमा के पास रहेगा, इसने अचानक मुड़कर कहा तो रुख इसके सीने से आ लगी थी। सर फाड़ दिया मेरा। वो अपना सर पे हाथ रखे पीछे हटी तो यारम ने इसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया था। इसके अचानक ऐसा करने से रुख दोबारा इसके सीने से आ लगी थी। यार हम सोनू को भी साथ लेकर चलते हैं ना, वो यहाँ कैसे रहेगा मेरे बगैर। इसके गले में बाहें डाले वो बहुत लाड से बोली थी। बेबी तुम्हें इस कुत्ते से दूर ले जाने के लिए तो इतनी दूर जा रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं आ रहा और ये मेरा आखिरी फैसला है, इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। इसके माथे को चूमने के बाद वो जारहाना अंदाज में इसके गाल को चूमते हुए इससे दूर हटकर किचन का रास्ता ले चुका था, जबकि इतने दिनों के बाद यारम का ये पुराना अंदाज रूह को शर्म आने पर मजबूर कर गया था। और यारम जानता था कि इसके इस जारहाना जुसारत के बाद अब रूह इसके बारे में और कोई बात नहीं करेगी। यारम जब तक इसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था, रुख बाहर बैठी लिस्ट तैयार कर रही थी। इसे कौन कौन सा सामान चाहिए। अपने और यारम के कपड़े के साथ इसने अपने बेबी के कपड़े भी लेने थे। हाँ, वो कुत्ता सिर्फ निक्कर और छोटी सी शर्ट पहनता था, क्योंकि बकौल रुख इसकी बेबी को सर्दी भी तो लग सकती थी। वो तो शुक्र था कि अभी सर्दियों का मौसम नहीं था, वो तो इसे स्वेटर भी पहनाती। अब वो इसे मासूमा के पास छोड़कर जाएगी तो इसका सामान भी तो इसे देना होगा ना। और बाकौल रूह के इसके सारे के सारे पुराने कपड़े छोटे हो चुके थे और इसकी बेबी को शॉपिंग की अशद जरूरत थी। रुख नाश्ता तैयार है, वो टेबल पर नाश्ता लगाते हुए इसे पुकार रहा था। जब रुख हाथ में पेपर पकड़े किचन में दाखिल हुई थी। यारम ये लिस्ट है, ये सारा सामान या तो आप वापस आते हुए ले आइएगा, वरना हम दोनों साथ चलेंगे। इसने हमेशा की तरह लिस्ट इसके हाथ में थमाई थी। तुम जाकर ले आओ ये सब कुछ, वो बेहद आराम से कहता लिस्ट से थमाकर टेबल पर पानी की बोतल रखने लगा तो रुख ने बेयकीनी से देखा था। यार आप सीरियस है, वो बेयकीनी से बोली थी। इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है रुख, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, कम से कम शॉपिंग पर तो अकेले जा ही सकती हो। अब तुम मेरे बारे में भी सब कुछ जानती हो, मैं क्या हूँ, कौन सी चीज़ किस अंदाज में पसंद करता हूँ। अब तुम्हें यहाँ कैद रहने की जरूरत नहीं, बाहर निकल करो, शॉपिंग करो, बाहर निकला करो, शॉपिंग पर जाया करो। और वो लैला कहाँ जाती है मासूमा के साथ, हाँ वो ब्यूटी पार्लर, वहाँ भी जाया करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बाहर निकलो इस कैद खाने से। वो प्यार से इसके गिरफ्त से खींचता हुआ इसे बैठने का इशारा करने लगा था। वो जो अपनी हैरानगी छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे यारम ने कुछ गलत बोल दिया है और अब वो इसकी बात की दुरुस्ती चाहती थी, लेकिन यारम के अगले जुमले ने इसे मजीद हैरानगी की घाइयों में धकेल दिया था। ये मेरा घर है यारम, कोई कैद खाना नहीं। और आपको पता है ना, मैं बाहर कभी अकेले नहीं गई, एक बार गई थी तो गुम हो गई थी, सारम भाई ढूंढ कर लाए थे मुझे। और फिर आप कितना गुस्सा हुए थे, याद नहीं है क्या आपको। वो इसे याद दिलाते हुए बोली तो यारम ने हाँ में सर हिलाया था। वो सब पहले की बातें हैं रुख, अब जिंदगी बदल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी लोगों के साथ साथ चलना होगा और तुम्हें भी घर से निकलना चाहिए। तुम क्या सारी जिंदगी मेरी आस पर बैठी रहोगी। यारम होगा तो ये काम होगा, यारम होगा तो ये काम होगा, यारम होगा तो वो काम होगा, ऐसे सारी जिंदगी नहीं चलेगा। रुख मेरी जान, तुम्हें कुछ काम खुद से भी लेने चाहिए। वो अब भी समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था। नहीं यार, मुझे नहीं जाना कहीं भी अकेले, आप फारिग होंगे तो हम साथ चलेंगे, नहीं तो मैं मासूमा के लैला में से किसी के साथ चली जाऊंगी। वो इसकी बात काट कर बोला था। तुम अकेली जाओगी रुख, ये फैसला था या हुक्म। वो सिर्फ एक बात रुख को समझ नहीं आई थी। और अब से तुम अकेले ही जाया करो कि खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो रुख, बाहर निकला करो। सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्यों, कहाँ जा रहे हैं आप। अब जो इस तरह से कह रहे हैं, आप सारी जिंदगी मेरे साथ नहीं रहेंगे और मुझे क्या जरूरत है कहीं भी अकेले जाने की। आप मेरे साथ रहेंगी, जब मेरा शोहर मेरे पास है तो मैं अकेले क्यों जाऊँ। और अगर कल को तुम्हारा शोहर ना रहा तो, अगर कल को मुझे गोली लग जाती है या कोई दूसरे गैंग का आदमी मेरी जगह लेकर मुझे मार देता है, तब क्या करोगी, मर जाओगी मेरे साथ। वो इंतहाई गुस्से से बोला था, लेकिन रुख की आंखों में नमी और बेतहाशा टपकते आंसू देखकर यारम को अपनी सख्त बात का एहसास हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, वो बिना इसे कुछ भी कहने का मौका दिए भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी। और यारम को यकीन था कि वो अब रो रही होगी। वो इसके पीछे पीछे ही कमरे तक आया था, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। रुक बेबी, सॉरी जान, मैं जानता हूँ मेरी बात गलत थी, मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं सही कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। अच्छा ठीक है ना, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, प्लीज दरवाजा खोलो। इसकी सिसकियों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, जो यारम को बेचैन कर रही थी, लेकिन वो दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रही थी। इस वक्त यारम से बुरा और कोई नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से यह शख्स इससे इसकी जिंदगी छीनने की बात कर गया था। वो मानती थी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इसने इसे खुदा से मांग मांग कर हासिल किया था। ये बात वो शख्स कैसे भूल गया। वो कैसे भूल गया कि यारम तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा था इसके लिए। इसने क्यों ऐसे दिल दुखाने वाली बात की। आज वो अगर किसी की आवाज
आवाज़ नहीं सुनना चाहती थी, किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, तो वो सिर्फ यारम था। आज पहली बार इस शख्स ने इसका दिल दुखाया था। बाहर मेरी और शफा की आवाज़ सुनकर रुख ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अपनी और यारम की नाचाकी को घर की मुलाजमा पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने ही यारम को बैठे देखा। इसके दरवाज़ा खोलते ही उठकर वो इसके करीब आया था। इसकी आंखें सूजी हुई थी, यकीनन वो काफ़ी देर से रो रही थी। यारम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यारम को अपनी बात की गहराई का एहसास हो चुका था। शायद जिन अल्फाज में इसने रुख को ये बात समझाने की कोशिश की थी, वो अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त थे। रुख मेरी जान, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। यारम प्लीज़ रूम के अंदर चलकर बात करें, मैं नहीं चाहती कि हमारी बातें कोई दूसरा सुने। रुख ने दरवाजे से अंदर दाखिल होती शफा और मैरी को देखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा था, अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप गए नहीं काम पर? मैरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, आज और भी बहुत काम थे, तुम लोग जाओ अपना काम करो। वो सर्द आवाज़ में कहता कमरे में दाखिल हुआ तो रुख भी कमरे के अंदर दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। यारम का यह अंदाज शफा या मैरी के लिए नया नहीं था, इसलिए वो दोनों ध्यान दिए बगैर किचन की तरफ आ गई थी। रुख, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ ना, बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? वो बेड पर इसके नज़दीक बैठा इसके दोनों हाथ थामे हुए था, जबकि रुख इसे नजर ना मिलाते हुए इधर उधर देख रही थी और इसकी बातों को मुकम्मल नजरअंदाज कर रही थी। यारम कासमी हर चीज़ बर्दाश्त करता था, लेकिन इसकी रुख इसे नजरअंदाज करे, ये बात इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। बस बहुत हो गया रुख, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही। मानता हूँ गलत अल्फाज बोल दिए थे, लेकिन बात गलत नहीं थी मेरी। तुम्हें तकलीफ देने का इरादा नहीं था मेरा, बस तुम्हें जिंदगी की धूप छाँव समझाना चाहता हूँ। और अब वो सख्ती से कह रहा था, मैं सब समझती हूँ यार, मुझे कुछ और नहीं समझना, आप जाएं यहाँ से, मुझे आपका चेहरा ही नहीं देखना। वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती बेड पर लेटने लगी थी। कुछ नहीं समझती तुम मेरी जान, नहीं समझ पा रही तुम, बहुत मुश्किल है ये जिंदगी। और क्या कहा तुमने, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती? एक ही दिन में क्या इतना बुरा लगने लगा हूँ मैं? वो इसे बाजू से पकड़कर एक बार फिर से बेहद करीब बिठा चुका था, बल्कि अपने बेहद करीब करते हुए इसके गिर्द बाहों का हिसार भी तंग कर चुका था। हाँ, बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इतनी गंदी बात कही भी कैसे आपने? अंदाज़ा भी है आपको कि आज आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है यारम? आप सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगते रहे, तब भी इस गलती की कोई सॉरी नहीं हो सकती। ना चाहते हुए भी एक बार फिर से इसकी आंखें नम होने लगी थी और इसके आंसू यारम को बेचैन करने लगे। जानता हूँ बहुत गलत बात कर दी है मैंने, इसीलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ ना। आई नो इस बात की कोई सॉरी नहीं होती, लेकिन मेरी रूह तो अपने यारम को माफ़ कर सकती है ना। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं आइंदा तुम्हें कभी भी नहीं कहूँगा शॉपिंग के लिए। प्लीज़ रोना बंद कर दो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता मैं। वो इसके आंसू साफ करते हुए इसकी नम पलकों को चूमकर इसे अपने सीने से लगा चुका था, जबकि रूह को सिसकने का जैसे एक और बहाना मिल गया था। इसके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जाऊंगी अकेली शॉपिंग, बस सुन ले आप। आंसू की रुवानी में कमी आई तो इसने उंगली उठाकर कहा, जबकि सर अभी भी इसके सीने पर था, कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ चलेंगे। यारम ने इसकी उंगली को चूमते हुए इसके नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया था। और वहाँ भी नहीं जाऊंगी जहाँ लैला और मासूमा जाती है, इसने फिर से कहा था। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें पार्लर जाने के लिए भी नहीं कहूँगा, और वैसे भी वो तो सब कुछ खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं, लेकिन मेरी रूह तो है ही खूबसूरत, इसे इस मसनूई बनावट की ज़रूरत नहीं। यारम ने इसकी बात की तस्दीक की थी। और आपको अकेले भी नहीं जाने दूंगी आइसलैंड की बहन के पास। वो सूं करती इसके सीने में मुँह छुपाती बोली तो यारम के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया था। ऑफकोर्स मेरा बच्चा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, हम दोनों साथ चलेंगे। अगर अकेला गया तो वहाँ की औरतें मुझे खा जाएंगी, और शोनू भी हमारे साथ चलेगा। वो सुसु करती लाड से बोली तो इस बार यारम ने इसे घूर कर देखा था। अगर आपने मुझे घूरा तो मैं फिर से रोने लगूंगी, रुख ने धमकी देते हुए कहा था। रुख, तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो, यारम ने जरा सख्ती से कहा। आप मुझे डांट रहे हैं? वो इसके सीने से मुंह निकालती मासूमियत से बोली थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? वो एक बार फिर से इसे अपने सीने से लगा गया था। हम छोनू को साथ लेकर चलेंगे ना? इसने मासूमियत से पूछा। वो मासूमा के पास रहेगा रुख, और इस बात पर चाहे तुम मुझसे नाराज हो या राजी, लेकिन इस कुत्ते को मैं हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। वो अटल अंदाज में बोला था, और वो जैसे हारते हुए खामोशी से इसके सीने पर सर दोबारा रख गई थी। आपको काम से देर हो रही है ना, आप गए क्यों नहीं? रुख ने पूछा था। तुम मुझसे नाराज थी रुख, और फिर जब तक तुम आराम से नाश्ता करके मेडिसिन नहीं ले लेती तब तक मैं कैसे जाता? सारा दिन एक पल को भी सुकून नहीं मिलता मुझे। है तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, उठकर जल्दी से नाश्ता करो। सुबह जो इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया था वो ठंडा हो चुका है, आओ तुम्हें कुछ और बनाकर खिलाता हूँ अपने हाथों से। वो इसे प्यार से इसके दोनों गाल चुपता बोला और उसे अपने साथ लेकर बाहर आ गया था। ये बात तो वो समझ ही चुका था कि रूह को आसान लफ्जों में ये मुश्किल बात समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसने सोच लिया था कि रूह को अपने तरीके से समझाएगा। रूह को बहादुर बनाने और दुनिया से लड़ने की हिम्मत देने के लिए इसे अपना तरीका इस्तेमाल करना था। इस पर गुस्सा करके इसे डांट कर कभी अपना मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। यारम ये कैसा है? इसने एक छोटे से बेबी ड्रेस को देखते हुए पूछा था। रुख, ये शोनू को फिट नहीं होगा, यारम ने बेजारी से कहा था। ओहो यारम, मैं शोनू की बात नहीं कर रही, ये तो मैं वो कुछ कहते कहते मुस्कुराई थी। शोनू के लिए नहीं तो फिर मेरे लिए है क्या? इसकी मुस्कुराहट का वो जानबूझकर इग्नोर कर गया था। यारम, आप भी ना, क्या हम सारी जिंदगी शोनू के ही कपड़े खरीदते रहेंगे? मैं तो अपने बेबी की बात कर रही हूँ, इसने शर्माते हुए कहा था। ओह रूह, अच्छा ये तो हमारे होने वाली बेबी के लिए देख रही हो, बहुत प्यारा है, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें इसकी ज़रूरत है। इसकी प्यारी सी मुस्कान को अपने दिल में बसाए वो मोहब्बत से बोला था।
हाँ पता नहीं हमें इसकी ज़रूरत कब होगी, ये तो बहुत खूबसूरत है। रुख ने हसरत से कहा था। तो फिर लो तो फिर ले लो मेरी जान, जो चीज़ दिल को अच्छी लगे इसका इंतज़ार नहीं करवाते, और इंशाल्लाह इसको पहनने वाला भी आ ही जाएगा। यारम ने इसकी झुकी नज़र देखते हुए कहा था। मैं फजूल खर्च नहीं हूँ यारम, और ये कितना महंगा भी तो है, और वैसे भी हम बाद में इसकी शॉपिंग करेंगे ही। रुख ने ड्रेस वापस रखते हुए कहा था। यारम का दिल चाहा कह दे, ये जो शोनू के लिए शॉपिंग की है वो भी तो तकरीबन फजूल खर्ची ही है, लेकिन नहीं, वो शोनू की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती थी। तुम्हें जो चीज़ पसंद हो तुम इसे ले लिया करो, इसकी पेमेंट करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी ये वो पहली चीज़ है जो तुमने शोनू के बजाय हमारे बच्चे के लिए पसंद की है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पसंद किसी और के हिस्से में जाए। इसने वो ड्रेस उठाते हुए इसे बावर करवाया तो रुख मुस्कुराते हुए इसके पीछे आ चुकी थी, जबकि शोनू की छोटी सी रस्सी इसके हाथ में थी और वह इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। यारम ये आप पे बहुत प्यारा लगेगा, प्लीज ट्राई करें ना। वह ब्लू शर्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे यारम पहनता था इसे दिखाते हुए बोली थी। ओके, यारम ने फौरन इसकी पसंद पर मेहर लगा दी। ओके नहीं, अभी ट्राई करें, वो बाजिद हुई थी। रुख ले लो ना यार, पहन लूंगा, तुम्हारी पसंद बुरी नहीं हो सकती, खरीद लो, यारम ने कहा था। यारम मैं आपको ट्राई करने का बोल रही हूँ ना, वो इसे घूरते हुए बोली, साथ ही मुंह भी बसूरा था। मतलब अगर इसकी बात ना मानी तो इसकी नाराजगी पक्की, और यारम इसकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है यार, जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए, मुंह सीधा करो, याद रखो ना इसका। वो शोनू को देखते हुए बोला और ट्राई रूम की तरफ चला गया, और शोनू ने हल्की आवाज में से यकीन दिलाया था कि उसके जाने के बाद रुख का ख्याल रखेगा, जबकि रुख मुस्कुराते हुए और चीजें पसंद करने लगी थी। छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखते हुए वो इस हद तक इनमें खो गई, इसे पता भी न चला कि वो बच्चों की शॉपिंग सेंटर के अंदर आ चुकी है, और वो बेतियानी में हर वो चीज़ को देखने में इस हद तक मसरूफ हो चुकी थी कि इसे बिल्कुल भी होश ना रहा था कि शोनू इसके पास है भी या नहीं। बच्चों के खूबसूरत कपड़े, जूते और इस्तेमाल की चीज़ें इसे अंदर से बहुत खुश कर रही थी, और यही सारी चीज़ें इसके अंदर एक बार फिर से महरूमी पैदा कर रही थी। इसे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब यारम को इसकी मां बनने की खबर मिली थी, और वह दुबई से पाकिस्तान सिर्फ इसकी खातिर गया था, और इस खुशी को वो दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था। लेकिन इनकी ये खुशी इनसे जल्द ही छिन गई थी, शायद तब अल्लाह को मंजूर नहीं था, और इसके बाद जिंदगी ऐसा इम्तहान बनी कि इन्हें किसी चीज़ का होश ही न रहा। लेकिन वो सब्र करने वाली लड़की थी, वो जानती थी कि अल्लाह अपने पसंदीदा इंसानों को आजमाइश में डालता है। यकीनन वो अल्लाह के पसंदीदा इंसानों में से एक थी, और इसका यकीन कामल था कि इसकी खुशियाँ इससे दूर नहीं। अनकरीब इसका रब इस पर मेहरबान होने वाला है। अपने ख्यालों में खोए वो इन सब चीज़ों को छू रही थी जब इसे एहसास हुआ कि शोनू तो इसके करीब है ही नहीं। वो बेचैनी से हर तरफ शोनू को तलाश करने लगी, लेकिन अचानक वो किस तरफ जा चुका था, इसे कहीं से भी शोनू का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। वो बच्चों के कपड़ों की दुकानों से निकल कर आगे पीछे देखने लगी कि यारम न जाने कहाँ रह गया था, अभी तक नहीं आया था, लेकिन कहीं शोनू यारम के पास तो नहीं चला गया। इसी सोच के साथ वो एक बार फिर से पूरी मार्केट में नजर दौड़ाने लगी, लेकिन अब भी शोनू से कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब इसके पास नीचे जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ ऊपर वो हर जगह देख चुकी थी। इसीलिए अब एक बार फिर नीचे देखने का फैसला करते हुए वो सीढ़ियाँ उतरने लगी, जब अचानक किसी ने इसका बाजू थाम लिया था। क्या हो गया है, रुक क्यों इस तरह से नीचे जा रही है, मैं तो यहाँ पर हूँ ना। यारम इसकी पसंद की हुई ब्लू शर्ट में पहने इसे सामने खड़ा था। यारम शोनू कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहीं नहीं मिल रहा। मैं तो यहाँ सब तरफ देख चुकी हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। डोंट वरी रुक, यही होगा, आ जाएगा, वो किसी जानवर के साथ खेल रहा होगा। तुम यहीं पर रुको, मैं नीचे देख कर आता हूँ। दुबई के इस शॉपिंग सेंटर में लोगों को अपने पालतू जानवरों के साथ अंदर आने की इजाज़त थी, और यहाँ जानवरों के कपड़ों की एक अलग से वैरायटी मौजूद थी, इसलिए रुक इसे हमेशा यहीं लाने की जिद करती थी। यह जगह इनके लिए अनजान नहीं थी, लेकिन छोनू का गुम हो जाना इनकी परेशानी की वजह थी। रुक वहीं रुक कर आगे पीछे छोनू को देखने लगी, जबकि यारम नीचे जा चुका था। वो परेशानी से सारी जगह चेक कर चुकी थी। जब मेल रेस्ट रूम की तरफ से इसे शोनू की रस्सी नजर आई, वो तेजी से इसकी तरफ आई थी, लेकिन सामने ही शोनू को किसी दूसरे शख्स के जूते चाटते उसके पास से और इसके हाथ से बिस्किट खाते देखकर वो परेशान हो गई थी। पहले तो उसे शोनू की इस हरकत पर अच्छा खासा गुस्सा आया। एक तो वो खुद न जाने कहाँ चला गया था, और अब वो यहाँ किसी अनजान शख्स को प्यार कर रहा था, जबकि वो शख्स आराम से इसके करीब बैठा इसके बाल सुलझा रहा था। ना जाने ये शख्स कौन था, कोई अरबी ही होगा। मैं इसे अपनी बात कैसे समझाऊंगी, मैं यारम को बुलाती हूँ, रुख ने सोचा था। लेकिन मेरे वापस आने से पहले अगर ये शख्स मेरे शोनू को कहीं ले गया तो। रुख ने अपने चलते कदम पर ब्रेक लगाई और मुड़कर देखा। वो मेरा है, शोनू मुझे पहचानता है, मुझे देखते ही मेरे पास आ जाएगा। इसने सोचते हुए इस शख्स के सामने जाना बेहतर समझा था, और इसके करीब आते हुए इसकी रस्सी को थाम कर बिना इस शख्स को देखे इसे लेकर जाने लगी। लेकिन शोनू तो जैसे आने को तैयार ही नहीं था। वो तो बहुत आराम से इस नए शख्स की मोहब्बत को वसूल कर रहा था। ये मेरा डोगी है, रुख ने उर्दू में कहा, क्योंकि इसे अरबी नहीं आती थी और न ही यारम ने सिखाना जरूरी समझी थी। अब रुख को समझ नहीं आया था कि इसकी बात ये शख्स समझ पाया है या नहीं, लेकिन रुख अपना फर्ज निभा चुकी थी। मेरा नाम दर्क है, इसे पीछे से आवाज सुनाई दी। रुख ने मुड़कर देखा, इसका शोनू बड़ा उदास लग रहा था, लेकिन ये बात इसे समझ आ चुकी थी कि वो शख्स उर्दू जानता है, उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी चुका है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। वो शायद अंदाज में कहती शोनू को घसीट रही थी और इसे वहां से लेकर गई थी। अपना नाम बताने की जहमत इसने बिल्कुल भी गवारा नहीं की थी, जबकि इसे इस तरह से
जबकि इसे इस तरह से दूर जाते देखकर वो शख्स जरा सा मुस्कुराया था। इसने एक नज़र मुड़कर देखा, वो शख्स अब वहाँ पर मौजूद नहीं था। जबकि यारम को नीचे सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देखकर इसने हाथ के इशारे से यारम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया था और साथ ही इसमें रस्सी भी दिखाई थी कि शोनू इसे मिल चुका है। यारम सुकून का सांस लेते हुए दोबारा इसके करीब आया था। शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी थी, अब वो घर जाने का फैसला कर चुके थे। यारम ये बहुत बिगड़ गया है, एक अनजान शख्स से प्यार ले रहा था, इसको वो घर चलकर ठीक करती हूँ। कैसे शख्स से बिस्किट खा रहा था ये। फिर वो गुस्से से शोनू को घूरते हुए साथ ले जाने लगी, जबकि यारम जानता था कि ये सारा गुस्सा किसी दूसरे शख्स से बिस्किट लेकर खाने या इसे प्यार लेने का नहीं, बल्कि ये इसके अंदर की जलन थी। वो चाहती ही नहीं थी कि शोनू को इसके अलावा किसी और से अटैचमेंट हो, इसीलिए तो वो इसे मासूमा के पास भी ज्यादा नहीं रहने देती थी। कौन था वो शख्स? तुमने इसे देखा? तुमने इसे बताया ना कि ये कुत्ता तुम्हारा है और इसके बिना तुम्हारी इजाजत के तुम्हारे कुत्ते को इस तरह से छूना, ये इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना गैर कानूनी है? यारम ने पूछा था। मैंने बस इतना ही कहा कि ये डॉगी मेरा है और अब इसे लेकर आ गई, लेकिन इसके पास बहुत आराम से बैठा था, कैसे आराम से इसके हाथ से खा रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यारम। वो अपने दिल की कैफियत बयान करते हुए बोली तो यारम मुस्कुरा दिया था। बस यही हाल होता है मेरा, जब तुम मुझे छोड़कर हर चीज पर ध्यान देती हो। यारम बरबराते हुए इसके साथ चल रहा था। शुक्र है कि रुख ने इसकी बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त वो शोनू पर गुस्सा थी। यकीनन इसकी बात सुनकर शोनू के साथ साथ इससे भी खफा हो जाती और इसे गाड़ी में बिठाते हुए इसकी नसीहतें शुरू कर चुकी थी। शोनू खामोशी से इसकी डांट सुन रहा था। बस कर दो बेबी, अब क्या जान लो कि इस बेचारे की हो गई गलती से। थोड़ी ना पता था किसी और से प्यार लेने पर तुम इतना गुस्सा हो जाओगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस नस्ल के कुत्ते को तो ज्यादा लोगों के साथ अटैच नहीं होते और ना ही अनजान लोगों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो भी शोनू इस आदमी के पास कैसे गया? यारम कहीं वो कोई किडनैपर तो नहीं हो सकता है वो शोनू को हमसे चुरा कर ले जाना चाहता हो। रुक को एक और ख्याल गुजरा, और ये बात सच भी हो सकती थी, क्योंकि कोई पागल ही था जो इतनी महंगी नस्ल के कुत्ते को इस तरह से छोड़ देता। मुमकिन है तुम्हारी बात भी हो सकता है कि वो कोई चोर ही हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। शोनू की नस्ल के कुत्ते बहुत होशियार होते हैं, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आते। यारम ने इसे बेफिक्र करना चाहा था, और ये बात सच भी थी कि एक कुत्ते की जिस नस्ल से शोनू का तल्लक था वो एक बहुत ही होशियार और बहादुर नस्ल थी। छोटे कद के ये कुत्ते ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भी इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए इनको लेकर इस तरह का डर रखना एक किस्म की बेवकूफ़ी थी। लेकिन रूह के लिए कोई भी समझदार होशियार कुत्ता नहीं था, बल्कि इसके लिए तो वो छोटा सा शोनू था जो किसी बात को भी नहीं समझता था और इसे अपनी मालकिन की जरूरत थी। ये तो बहुत ही अच्छा है यारम, लेकिन शायद तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि फिलहाल काम बहुत ज़्यादा है, और तुम रूह को इस तरह से लेकर चले जाओगे तो काम में बहुत सारे मसाइल पेश आएंगे। तुम जानते हो ना कि ये सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते। 14 तारीख तो आ रही है, तुम मुझे अभी तक 14 तारीख तो आ रही है और तुम मुझे अभी ये सब कुछ इतना अचानक बता रहे हो। काम होते रहेंगे हिजर, एक अरसे से हम काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा वक्त अपनी बीवी को देना चाहता हूँ, तुम इसमें गलत किया है। रुख की तबीयत अभी थोड़ी बेहतर हुई है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक नई जिंदगी और प्यारी जिंदगी की शुरुआत करूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ करवाया है। और काम तुम मुशर्रफ संभालोगे सब, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। यारम ने काफ़ी बेफिक्री से कहा, लेकिन हिजर बेफिक्र नहीं था। यारम तुम हो तो हम हैं, तुम्हारे ना होने से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते हो फिलहाल बहुत सारे केसेस में हमारा नाम शामिल है। इस वक्त तुम्हारा मंजर से गायब होना हमें बुरी तरह से फंसा देगा, इसलिए मेरी बात मानो तो ये प्लान कैंसिल कर दो। अगर तुम रूह से बात नहीं कर सकती तो मैं इसे समझाऊंगा, वो मेरी मजबूरी को समझ जाएगी, लेकिन तुम्हारा इस तरह से यूं अचानक जाना हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा। हिजर ने समझाने वाले अंदाज में कहा था। इसकी बात ठीक थी, यारम का इस तरह से मंजर से गायब होना इनके लिए नुकसानदा साबित हो सकता था, क्योंकि फिलहाल यारम बहुत सारे केसेस में हाथ डाल चुका था, वह बहुत बड़े गैंग में पंगा ले चुका था, और ऐसे में इसका जाना इसकी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन वो रूस से वादा कर चुका था जिसे वो कभी भी नहीं तोड़ सकता था। आज 9 तारीख थी, इसको जाने में 5 दिन बाकी थे, और कुछ दिन से रूह भी बिना किसी किस्म की कोई भी मस्ती की मेडिसिन ले रही थी। पिछले कुछ दिन से वो जिस तरह से खुश थी, वो इसे हट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो आज भी दवाओं के जहरे असर गहरी नींद में उतर चुकी थी, और सोने से पहले आज भी इसने स्विट्जरलैंड जाने की बहुत सारी बातें की थी। कितने वक्त के बाद वो दोनों अकेले ही जाने वाले थे, हर परेशानी हर टेंशन से दूर, 24 घंटे एक साथ। वहाँ सिर्फ रूह होती और इसका यारम। बस यही सोचकर रूह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जिसने इसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाला था। लेकिन अब वो इसे बता नहीं पा रहा था कि वो 14 तारीख इसके साथ नहीं जा सकता। इस वक्त यारम बहुत सारे कीड़े मकोड़े नमाडोन्स की नज़र में था, जो इसको नहीं, लेकिन इसके जाने के बाद इसकी टीम को नुकसान पहुंचा सकते थे। ना तो वो अपनी टीम पर किसी किस्म का कोई रिस्क ले सकता था, ना ही रुख से किया हुआ वादा तोड़ सकता था। वो अपनी ही सोचों में गुम था, कब से रुख का मासूम चेहरा नजरों के हिसार में लिए हुए था। जब इसे लगा कि वो नींद में बेचैन हो रही है, इसने इसके माथे पर हाथ रखते हुए इसे अपने होने का एहसास दिलाया था। लेकिन रुख की बेचैनी कम नहीं हुई थी, बल्कि मजीद बढ़ रही थी। इसकी सांसें रुकने लगी। यारम ने इसको
जगाना बेहतर समझा था। जानता था कि रूह नींद की दवाई के ज़हरी असर है, वो आसानी से नहीं जागेगी। लेकिन यारम ने एक झटके में से बेड पर बिठा दिया था, जिससे इसकी नींद टूटी थी। यारम ने फौरन पानी का गिलास उठाकर इसके लबों से लगाया। वो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी, इसका पूरा वजूद कांप रहा था। यारम ने इसे अपने नज़दीक करते हुए अपने सीने से लगाया। जानता था कि फिलहाल तो कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। यारम, हम कहाँ जाएंगे? हम कब जाएंगे? ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज़ मुझे लेकर चले अपने साथ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। कोई डर, कोई खौफ नहीं। यारम, यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे ले चले खुली फिजा में, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। यार, मुझे खुलकर जीना है, मुझे बहुत डर लगता है, ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे? बस किसी ने से लगी आहिस्ता आहिस्ता बोलती दोबारा नींद की वादियों में उतर रही थी, जबकि इसके अल्फाज ना चाहते हुए भी यारम को एक अहम फैसला करने पर मजबूर कर रहे थे। यारम की आंख खुली तो इसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल इसके करीब किसी नन्हे से बच्चे की तरह इसके सीने में छुपी सो रही थी। सिर्फ 2 दिन और फिर ये सारी दुनिया की सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। वो अपनी रूह को अपने अंदर कहीं छुपा लेगा। जिस दिन से इसने रूह को अपने सेकंड हनीमून के बारे में बताया था, वो बिना किसी किस्म की कोई भी मस्ती किए आराम से अपनी मेडिसिन ले रही थी और अपना बहुत ख्याल भी रख रही थी। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस माहौल से दूर जाने के लिए कर रही थी। वो जानता था कि वो इस माहौल से तंग आ चुकी है। यारम का इस तरह से दूर रहना, इसकी हर पसंदीदा चीज़ पर पाबंदी लगाना, ये सब कुछ रूह के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो जानता था कि वो सिर्फ इसके साथ वक्त गुजारना चाहती है। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ यारम का साथ चाहती है, इसके करीब रहना चाहती है। और यारम अपने काम की वजह से काफ़ी वक्त से ना सिर्फ इसे दूर था, बल्कि इसकी बीमारी की वजह से वो इसे दूर ही रहता था। ये सारी पाबंदियां डॉक्टर्स की लगाई हुई थी। डॉक्टर का कहना था कि रूह को इस तरह से रखा जाए कि इसे किसी भी चीज़ में घुटन महसूस ना हो। और जब मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी। रूह को पुरसुकून रखने के लिए इसे नींद की गोली दी जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके होबू का असर खत्म ना कर सकी थी। हाँ, लेकिन अब इस अंधेरी रात का असर कम हो चुका था। पहले की तरह वो सारी रात नहीं जागती थी। इसका डर काफ़ी हद तक कम हो चुका था। वो कब्र का डर कम हो रहा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। और यारम इसके अंदर से इस डर को खत्म कर देना चाहता था। इसलिए यारम ने इसे कुछ वक्त के लिए यहाँ से दूर ले जाने का सोचा था। वो रूह को एक नया माहौल देना चाहता था, लेकिन इसके दुश्मनों के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए कल रात इसने इस सिलसिले में प्लानिंग की थी, और आज सुबह वो इसी पर अमल करने के बारे में सोच रहा था। वो हिजर और शारफ की ज़िंदगी पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था। वो जानता था इसके दुश्मन इसकी गैर मौजूदगी में इसके सबसे वफादार आदमी को अपने शिकार बनाएंगे, और अगर इन लोगों ने इसका साथ ना दिया तो यकीनन इनका नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश भी करेंगे। मुमकिन था कि इसकी गैर हाजिरी में यारम की जगह पर कब्जा करने की कोशिश करे। इसीलिए वो अपनी टीम को महफूज करके ही यहाँ से जाना चाहता था, जिसकी प्लानिंग वो पहले ही कर चुका था। एक नज़र रूह को देखने के बाद वो इसके करीब से उठा और फ्रेश होने चला गया, ताकि वापस आकर रूह के लिए नाश्ता बना सके। वो गहरी नींद सो रहा था जब इसका मोबाइल फ़ोन बज रहा था। कौन था जो इतनी सुबह इसकी नींद खराब करता? इसने गुस्से से एक नज़र फ़ोन की जानिब देखा था। दिल तो चाह रहा था कि फ़ोन करने वाले की गर्दन काट डाले, लेकिन इसका प्यारा दोस्त गर्दन के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हिजर के बच्चे सुबह के 6 बजे मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बड़बड़ाया। क्या मुझ मासूम को बीवी का मुसीबत मिली है, जो रात के 12 बजे तक बर्तन रखकर इंतजार करती है कि कब सारिफ आकर धोएगा, और ऊपर से सुबह सुबह ये हिजर का बच्चा नींद खराब कर देता है। मासूमा की बददुआ लगी थी तुझे, हिजर वो बड़बड़ाते हुए। मासूम की बददुआ लगेगी तुझे, हिजर वो बड़बड़ाते हुए बिना देखे फोन उठा चुका था। जल्दी बोलो, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सोना है मुझे। और फिर वो गुरूस हिटलर ब्लेड कटर द यारम डेविल कास्मी मुझे बुला लेगा, और कोई काम नहीं है इसको। फिर लोगों के सीनों पर ब्लेड चलाना है, और अगर ब्लेड नहीं चलाना तो इसके मुंह पर तेजाब फेंककर इनका काम तमाम करना है। और बाद में वो लाशें हम ठिकाने लगाते हैं, और फिर आधी रात को जब घर वापस आते हैं तो बीवी बर्तन धुलवाती है। सोते हैं तो सुबह टेबल सबका फोन आ जाता है। ऑफिस में जाओ, इसकी सफाई करो। महाराज अपने साफ सुथरे पैर गंदे फर्श पर नहीं रख सकते। वो अपनी नींद खराब होने का सारा गुस्सा फोन पर मौजूद दूसरे आदमी पर निकाल चुका था। हिजर, खामोश क्यों हो मेरे भाई, क्या हुआ है? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? काफी देर दूसरी तरफ से कोई आवाज ना सुनने के बाद शारफ ने मासूमियत से पूछा था। शारफ, आज के बाद फोन उठाने से पहले तुम देखोगे कि फोन पर कौन है, और फिर इस हिसाब से बात करोगे। आई मेरी बात समझ में? अगर नहीं समझ में आई तो अगली बार ब्लेड तुम्हारे सीने पर और तेजाब तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। यारम के साथ आवाज गूंजी और शारफ के हाथ कांपने लगे थे। डेवल, मेरा मतलब भाई, आप? यारम भैया, क्या आप हैं फोन पर? इसने लड़खड़ाती आवाज में बात मुकम्मल की थी। ये जो तुम्हारे तोते की तरफ पटर पटर जुबान चलती है ना, इसे एक दिन में काट दूंगा। तुम्हारी वजह से मुझे या मेरी टीम को 1% भी नुकसान हुआ था, तुम्हारा वो हाल करूंगा जो सोचते हुए भी तुम्हारी रूह कांप उठेगी। वो अभी भी काफी गुस्से में लग रहा था। नोटेबल के प्राइवेट नंबर है, इस पर सिर्फ टीम के मेंबर ही फोन कर सकते हैं। शारफ ने इसे बेफिक्र करना चाहा था। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ, इनमें 6 लोग हैं आज डिनर पर, जबकि 5 लोग आज लंच पर मुझसे मिलने चाहिए। यारम ने कहते हुए फोन बंद कर दिया था, जबकि शारफ सोच रहा था कि ऐसे कौन से स्पेशल लोग हैं जिनके लिए यारम ने इसे 6 बजे फोन करके उठा दिया था। और फिर चंद ही सेकंड में एक लिस्ट इसके मोबाइल पर ओपन हो चुकी थी। ये 11 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें दुबई के 11 बड़े और पावरफुल किंग्स थे।
और ये लोग किसी न किसी तरीके से यारम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ताकि इसकी जगह पर अपना कब्जा जमा सके और सब इसकी जगह डॉन बनना चाहते थे और दुबई माफिया पर राज करना चाहते थे। ऐसा तभी मुमकिन था जब डेवल को जान से मारते या फिर डेवल इनसे हाथ मिला लेता। वो लोग काफी बार यारम की जानब दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके थे, लेकिन ऐसे हिमानू से डेवल सिर्फ दुश्मनी रखना पसंद करता था। वो लोग तो यारम के खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था अपनी टीम को महफूज रखने के लिए वो इन लोगों से हाथ मिला रहा था, मतलब कि वो अपनी तरफ से इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। शारफ को ये बात अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन यारम का आर्डर था तो पूरा तो करना ही था। मतलब कि इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब हम इन हैवानों से हाथ मिलाएंगे। जानता हूँ यारम रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन इसके लिए तुम इन घटिया लोगों से हाथ मिला लोगे जो मासूम बच्चों के जिस्म का धंधा करते हैं, जो मासूम बच्चों के जिस्म में ड्रग्स और नशेबाज शराब और पता नहीं कौन कौन से जहर को भर देते हैं। रूह के लिए तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो इंसानियत कहाँ गई जिसकी खातिर तुमने ये काम शुरू किया था। शारफ सोच सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ सामने कोई और नहीं बल्कि डेवल था, जिसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की परवाह थी। और अपनी बीवी को एक परसुकून और मोहब्बत भरा माहौल देने के लिए वैसे घटिया लोगों को डिनर और लंच पर इनवाइट करके ये दोस्ती का हाथ यारम की तरफ बढ़ाया जा रहा था। तो यकीनन इन सब ने खुशी दिली से कबूल करना था, लेकिन शारफ मुतमईन नहीं था। यह सब कुछ करते हुए इसका दिल बेचैन था और अपना सारा गुस्सा सुबह से मासूमा पर 2 बार निकाल चुका था। मासूमा की ये आदत बहुत अच्छी थी कि जब शारफ गुस्से में होता वो कुछ नहीं बोलती थी, बल्कि इसकी हर बात को हंसकर बर्दाश्त कर जाती, और फिर जब इसका गुस्सा खत्म हो जाता तब मासूमा की बारी आ जाती और वो अपने बदले गिन गिन कर पूरे करती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। शारफ गुस्से से बेहाल होते हुए 4 से 5 बार हिजर को फोन कर चुका था। हिजर को भी ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी थी कि रूह के लिए वो ऐसे घटिया लोगों के हाथ मिलाने को तैयार है। हाँ, वो रूह ही थी जिसने यारम के अंदर इसे एक प्यारे से इंसान को जगाया था, लेकिन इसकी वजह से यारम के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही थी। वो मतलबी होता जा रहा था। शारफ को फोन करने के बाद वो बेफिक्र हो चुका था, क्योंकि जानता था कि शारफ अपना काम वक्त पर निपटा लेगा। रूह का नाश्ता बनाकर कमरे में लाया तो रूह अभी भी सो रही थी। वो प्यार से इसके करीब आया, इसको जगाने लगा। इस वक्त सुबह के 5:30 7:30 बज रहे थे। आज दोपहर का लंच इसने इन लोगों के साथ करना था जिनसे वो बेतहाशा नफरत करता था, और आज का डिनर इन लोगों के साथ जिन्हें देखते ही वो इस दुनिया से खत्म कर देने का इरादा रखता था। लेकिन ये इसकी मजबूरी थी कि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन यारम को इन लोगों को बर्दाश्त करना था। वो इसे काफी देर से जगा रहा था, लेकिन रूह की नींद नहीं टूट रही थी। जब बेसाख्ता ही यारम की नजर इसकी आंखों की पलकों से होते हुए इसके सुरख लबों पर आ ठहरी थी, वो बेखुद सा इसके लबों को देखने लगा। आज बहुत अरसे के बाद इसका दिल बगावत करने लगा था। दिल को बहुत समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार ना था। आज वो इसके लबों को छूने की ख्वाहिश कर रहा था। यारम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इसका दिल बागी होने लगा था। आज वो इसके किसी बहाने पर कान नहीं धर रहा था। इसके गले में कांटे चुभने लगे थे, जैसे आज अगर वो यहाँ से पीछे हट गया तो शायद इसकी प्यास ही मर जाएगी, तो शायद वो प्यास से ही मर जाएगा। तशनगी थी जो बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था, और फिर न चाहते हुए भी इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर इसके लबों को अपने लबों की दस्तर में लिए महसूस करने लगा। बेहद नरम और प्यार भरा लम्स था, कहीं वो इसके छूने से टूट न जाए। और बहुत नरमी से अपनी सांसों की खुशबू को इसकी सांसों में बसा रहा था, और फिर न चाहते हुए भी वो इससे दूर हुआ, क्योंकि ये तशनगी तो शायद अब कभी भी नहीं मिटनी थी, और ना ही ये प्यास कभी खत्म हो सकती थी। लेकिन वो अपने बाकी दिल की सिर की खातिर अपनी रूह को किसी किस्म के इम्तिहान में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो नरमी से अलग हुआ था। इसके दूर होते ही रुख ने अपनी आंखें खोल दी। वो जानता था कि वो जाग चुके। इसकी सांसें तेज होने लगी थी, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। यारम बेखुद से इसका चेहरा देख रहा था, जबकि इसे खुद को देखते पाकर रुख ने फौरन अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए थे, और उसकी यह हरकत यारम की चेहरे पर मुस्कुराहट को गहरा कर चुकी थी। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ऐसे कौन करता है किसी बीमार इंसान के साथ। इसकी मीठी सी सरगोशी इसके कानों में गूंजी तो यारम के निम पर मजीद गहरे हुए थे। बेबी, अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला। बहुत सता लिया तुमने मुझे। स्विट्जरलैंड जाते ही तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। अगर गिन गिन कर बदले ना लिए तो मेरा नाम भी यारम काज़मी नहीं, याद रखना। और अब मजीद खुद को बीमार कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक हो तुम। और अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, और जहाँ लेकर जाऊंगा वहां तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसने नरमी से इसका माथा चूमते हुए इसका बाजू पकड़कर बिठा दिया था। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, और फिर मुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए निकलना है। आज का सारा दिन मसरूफ रहेगा, और हो सकता है रात को भी आने में देर हो जाए। तैयार हो जाओ तो मैं जाते हुए लैला के घर छोड़ दूंगा। आज बहुत दिनों के बाद इसने इसे लैला की तरफ ले जाने की बात की थी, तो रूह तो खुशी से फूले ना समाई थी। सच्ची यारम, आप सच में मुझे लैला के पास छोड़कर जाएंगे? आप कितने अच्छे हैं, और आपका ये डिंपल आपसे भी ज्यादा अच्छा है। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उसके गाल खींचते हुए और फ्रेश होने भाग गई थी, जबकि यारम इसकी स्पीड देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया था। टेबल सर, आपके मेहमान आ गए। शारफ ऑफ मूड के साथ पैगाम ले आया था। यारम ने इसका अनजान सा लहजा शिद्दत से महसूस किया था। सुबह से हिजर भी एक बार इसके ऑफिस में नहीं आया था, और शारफ भी सुबह से इसका नाम के बजाय सर कहकर पुकार रहा था, और जो ऑर्डर वो दे रहा था
इसे पूरा कर रहा था और जो ऑर्डर दिया था मैंने वो आया या नहीं, इसके अंदाज पर यार ने काफ़ी रूडली पूछा था। हाँ वो भी आ गया, लेकिन सिर्फ 5 लोगों का ही खाना है। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग भी वहाँ पर खाना खा रहे हैं। खैर हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं, आप अपने मेहमानों को खुद ही हैंडल करें। बदतमीज के दायरे में रहते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, जिसका यार नोट्स लिए बगैर इसके कमरे की तरफ आ गया था जहाँ लंच पर 5 लोगों को इन्वाइट किया गया था। इसने एक नज़र हीजर की तरफ देखा जो उसे देखते ही मुंह फेर गया था, मतलब कि इसके इस कदम पर वो भी इसे सख्त खफा था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं डेवल, जो तुमने हमें इस काबिल समझा कि तुमने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तुम्हारे इस कदम से हमें सच में बहुत खुशी हुई है। हम हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। बस तुम्हें हमें अपनी गैंग का हिस्सा बना लो, तुम्हारे नाम ही काफ़ी है सबकी छुट्टी कर देगा। वो लोग काफ़ी परजोश थे जब डेवल ने इन्हें खाने की तरफ मुतवज्जो किया। बहुत शुक्रिया डेवल, खाना बहुत लजीज है, मगर तुम क्यों नहीं खा रहे? इनमें से एक ने पूछा था। मैं दोपहर का खाना अपनी टीम के मेंबर्स के साथ ही खाता हूँ, आज वो लोग मुझसे ज़रा खफा हैं, तो ना खुद खाया है, ना खुद कुछ खाएंगे और ना ही मुझे कुछ खिलाएंगे, इसने आम से लहजे में जवाब दिया था। जबकि यारम अभी ने खाने की तरफ मुतवज्जो देकर अपने बैग से कुछ सामान निकाल रहा था। इसके हाथ में ब्लेड के पैकेट देकर एक आदमी को खाना खाते खाते अचानक खांसी शुरू हो गई थी। तुम ये ब्लेड्स क्यों निकाल रहे हो डेवल? हमें इससे बहुत डर लगता है, तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत खतरनाक है वो, और बहुत तकलीफदा भी। एक आदमी ने जहाँ बात छोड़ी थी इसकी बात को दूसरे आदमी ने मुकम्मल किया। मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो एक ब्लेड को अनपैक करते हुए सामने रखकर दूसरे को करने लगा था। ज़रूरत कैसी ज़रूरत, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। अपनी मौत को दूर से आता देखकर ही एक आदमी घबराकर माथे से पसीना साफ करते हुए बोला था। तुम जैसे दरिंदे कभी मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरे दोस्त सिर्फ 2 ही हैं, हिजर शारफ, ईमानदार और जान निसार करने वाले। इन दोनों के होते हुए मुझे तुम जैसे हैवानों को दोस्त बनाने की जरूरत कभी पेश नहीं आएगी। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाते रहो, अगर तुम लोगों के हाथ रुके तो मेरे हाथ चलेंगे, और यकीन मानो मौत बहुत तकलीफदा है। फिलहाल तुम 5 और रात के डिनर पर भी बाकी 6 को भी इनवाइट कर रखा है मैंने। बहुत सोचा, मैं तुम लोगों से ज़्यादा नफरत करता हूँ क्या इन 6 लोगों से, और फिर इन लोगों का पारा ज़रा भारी था, इसलिए सोचा था इन्हें ज़रा फुर्सत से मारूंगा। इसने खाने की तरफ इशारा किया तो वो 5 घबरा कर खाना खाने लगे, जबकि डेविड की आवाज़ एक बार फिर से गूंजी थी। खाने में जहर है, मेरी आदत है मैं अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। इसके कहते ही लोगों ने खाने से हाथ खींच लिए थे, और वैसे ही डेविड का हाथ चला था। सामने बैठे आदमी की उंगली इसके डर से अलग हो चुकी थी। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। मैंने कहा था ना, अगर तुम लोगों के हाथ खाने से रुके तो तुम लोगों की मौत ज़्यादा तकलीफदा होगी। इसने इस आदमी की परवाह किए बगैर बाकी चारों की तरफ इशारा किया तो वो कटी उंगलियों के साथ ही कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा था। मौत तो हर तरफ से आनी थी, इसलिए इस तरफ से ना सही तो उस तरफ से, और डेवल के ब्लेड से तरफ तरफ कर मरने से बेहतर था कि अब ये जहरीला खाना खाकर मर जाते। यारम पर सुकून सा कुर्सी पर बैठा इन चारों को खाना खाते हुए देख रहा था। एक तो वहीं जमीन पर बेहोश हो चुका था, शायद जहर ने अपना असर कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा दिया था। बेफिक्र हो, इसमें जहर से तुम लोग बहुत परसुकून नींद सो जाओगे, और शुक्र करना कि मेरे हाथों नहीं मारेगे। वो अपने ब्लेड को वापस बैग में रखता हुआ वहां से उठकर बाहर निकल गया था। 2 घंटे के बाद लाश ठिकाने लगा देना, वो शारफ से कहता आके पर गया था। अकरम खाना ऑर्डर करो, बहुत भूख लगी है। हिजर मुस्कुराकर कहता, शारफ को आने का इशारा करता। यारम के पीछे ही इसके कैबिन की तरफ भागा था। कमरा खून से भरा हुआ था, किसी की उंगली तो किसी का पांव कटा हुआ था। शारफ और हिजर दोनों ही यहाँ नहीं आना चाहते थे, बल्कि वो दोनों तो इस कमरे से कदम भी नहीं रखना चाहते थे। लेकिन यारम के ऑर्डर की आंखें इन दोनों की कहाँ चलती थी। हिजर अपनी फजूल में इस नाराजगी की सजा काट रहा था, तो शारफ से वह फोन पर होने वाली गुफ्तगू की सजा काट रहा था। और यारम अब जानबूझकर इन दोनों से बदला लेने के लिए बार बार अपना खून से भरा हुआ हाथ शारफ के रुमाल से साफ कर रहा था, और बार बार हिजर से फर्श पे पोछा लगवाता, क्योंकि इसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इन लोगों ने सुबह से अभी तक खाने का एक नवाला भी नहीं खाया था, क्योंकि यारम का मूड इस वक्त कुछ भी खाने का नहीं था। इसका मूड खराब हो चुका था। शारफ तो इस वक्त को रो रहा था जब इसने यारम को सर कहकर बुलाया था, और तब से लेकर अब तक वो पछता रहा था, क्योंकि यारम हर थोड़ी देर के बाद कहता, शारफ सर यहाँ आकर मेरा हाथ साफ करें, और वो बार बार इस खून से भरा हुआ हाथ साफ करते, और इस अमर को बर्दाश्त करते हुए शारफ की हालत खराब हो चुकी थी। इसे उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन डेवल के सामने ऐसी कोई भी हरकत अलाउड नहीं थी। जबकि हिजर जिसने फैसला किया था कि आज यारम इन लोगों के साथ लंच करे या ना करे, लेकिन हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वो गलत लोग हैं, क्योंकि वो गलत लोगों से हाथ मिला रहा है। लेकिन वो कहाँ जानता था कि अपनी इस गलती की वजह से इसे सारा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, और अब भूख से बेहाल होते हुए खून से पूरा फर्श साफ करके इसकी भूख भी बेमौत मर चुकी थी। आज यारम ने पहली बार इससे वो काम करवाया था जो शारफ करता था। शारफ तो सुबह इसका काम सुनकर ही खुश हो गया था। आज वो शारफ के हिस्से का काम करने वाला था, लेकिन जो काम यारम ने शारफ के लिए मुकर्रर किया था इसके बारे में शारफ बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं था। यारम के एक इशारे पर वो पैकेट से एक नया रुमाल निकालकर इसके पास आया और इसका हाथ साफ करने की कोशिश करता। यारम वाकई ही बहुत सफाई पसंद था। वो किसी किसाई की तरह आराम से कुर्सी पर बैठा इन लोगों की कटिंग कर रहा था, लेकिन मचाल था जो इसके कपड़ों पर खून की एक बूंद भी गिरी हो, इसके चेहरे और बदन या किसी और हिस्से पर कोई दाग आया हो। हाँ, इसका हाथ बार बार गंदा हो जाता जिसे शारफ साफ कर रहा था। शारफ और हिजर दोनों ही
बस इस वक्त को गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। ये बात तो इस तारीख में रकम हो चुकी थी कि आइंदा वो डेवर के असूलों पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। अपना काम खत्म करके यारम कपड़े झाड़ता हुआ वह उठकर वहां से बाहर निकल गया था और फिर इसके पीछे ही वो दोनों अपनी उलझी हुई हालत में बाहर आए थे। यारम, तुमने हमें माफ कर दिया ना? हिजर ने इससे पूछा था। ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले इन लाशों के सारे पुर्जे इस बेवकूफ इंस्पेक्टर तक पहुंचा दो। इसने एक और आर्डर दिया और अपने रूम की तरफ जाने लगा था। हिजर अपनी टीम तक इसके आर्डर पहुंचाता खुद भी इसके पीछे पीछे शाहरुख को लेकर आया था। यारम, हमने सारा काम कर दिया, अब बताओ क्या तुम अब भी हमसे नाराज हो? हिजर, शाहरुख, मेरा दिमाग खराब ना करो, फिलहाल जाओ यहाँ से, बहुत वक्त गुजर गया है, मुझे अभी अब चलना चाहिए, देर हो रही है, रूह इंतजार कर रही होगी। और जाओ तुम लोग भी कपड़े बदल लो, कैसे अजीब से हुलिये में हो तुम दोनों, मुझे देखकर ही राहत महसूस हो रही है। वो अपना कोट कुर्सी से उतारते हुए बोला था। यारम भाई प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आइंदा हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। शाहरुख जो कब से उनकी बातें सुन रहा था, यारम को यूं नजरअंदाज करते हुए देखकर इसके पैरों में झुक गया था। शारफ, हिजर, क्या बचपना है, उठो जमीन से, तुम जानते हो मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यारम ने जरा सख्त लहजे में कहा था। पसंद हो या ना हो यारम, बस तुम हमसे नाराज ना हो और ये बात हमारी बर्दाश्त से बाहर है, हमें प्लीज माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हिजर भी इसके पैर पकड़ चुका था। यार मसला क्या है तुम दोनों बेगारतों के? यार मसला क्या है तुम दोनों बेगैरतों का? सुकून से नाराज भी नहीं होने देते। यारम ने हार कर कहा था। वो दोनों मुस्कुराते हुए ना सिर्फ उठ खड़े हुए थे बल्कि इससे चिपक भी चुके थे। कमीनों, क्या हालत कर दी है मेरी, एक बार अपना हुलिया तो देख लेते, वो इन दोनों को समझते हुए बोला। तो हिजर और शाहरुख दोनों का कहका बुलंद हुआ था। बस तुम आइंदा हमसे नाराज नहीं होना यारम, हम सच में बेवकूफ़ है, हमने तुमसे एक बार नहीं पूछा कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, बस अपने पास ही अंदाजे लगाते रहे। हिजर ने सर झुकाकर अपनी गलती को कबूल किया था। हम तुम लोग सच में बहुत बेवकूफ़ हो, हमेशा उल्टे सीधे काम करते रहते हो। है इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन आइंदा ऐसा मेरे करीब मत आना, मुझे मेरे इतने करीब मेरी बीवी ही अच्छी लगती है, तुम जैसे गंदे और बदबूदार लोग नहीं। यारम ने इनकी हालतों की तरफ इशारा किया था। हाँ बिल्कुल, हम कोई सफर नाज़ुक थोड़ी हैं जो तुम्हें अच्छे लगेंगे। चल शाहरुख, जाकर नहा ले, मैं भी अपना हुलिया दुरुस्त करके घर जाने की तैयारी करता हूँ। अब वो दोनों परसकून थे। कल तक इनके दिमाग में बस यही एक सोच थी कि यारम के जाने के बाद ये गैंग्स इनकी टीम के लिए बहुत मुश्किल पेश करेंगे। मुमकिन था कि उसकी गैर मौजूदगी में इन पर हमला करते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ यारम की टीम का हिस्सा बनना चाहते थे और यारम ऐसा नहीं करता तो किसी न किसी तरीके से इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। तो पहले भी बहुत बार यारम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके थे ये, लेकिन यारम ने कभी भी इन लोगों को इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया था। इन सब की ख्वाहिश एक ही थी, यारम की जगह पर कब्जा करना, दुबई का डॉन बनना। लेकिन ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को यारम बहुत आसानी से जहन्नम तक पहुंचा देता था। वो तो सब इन सबको मौका दे रहे थे कि शायद वो सुधर जाए, लेकिन सुधरने के बजाय वो लोग अपना अपना एक गैंग तैयार कर चुके थे और दुबई के बहुत सारे इलाकों में अपनी दहशत फैला चुके थे। और इनमें से बहुत सारे बेगैरत ऐसे भी थे जो औरतों और बच्चियों की इज्जतों के लिए खतरा बन चुके थे। यारम की नज़र बहुत वक्त से इन लोगों पर थी, बस फिलहाल वो कानून की नज़रों में नहीं आना चाहता था, लेकिन अपने लोगों की सेफ्टी के लिए इसे ये कदम उठाना पड़ा था। वो सब एक से बढ़कर एक थे। यारम अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ बर्दाश्त कर सकता था, ना ही रुख से किए हुए वादे को तोड़ सकता था। आज नहीं तो कल इन सब ने यारम के कहर का निशाना बनना ही था, क्योंकि अपने कामों की वजह से वो यारम की बैड लिस्ट में शामिल हो चुके थे। इसलिए यारम ने यहाँ से जाने से पहले इन सबको ठिकाने लगाने का फैसला किया था कि इसके जाने के बाद इसकी टीम को किसी किस्म का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। वो चाहता था कि अब सब कुछ पीछे हिस्सा संभाल लेगा, इसकी मदद करने के लिए शाहरुख हर वक्त इसके साथ मौजूद होगा। अब वो रूह के साथ बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकता था। अब इसे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। वो परसकून सा होकर घर की जानिब आया था। लैला इसे शाम को ही फोन करके बता चुकी थी कि रूह इसके साथ बाजार गई थी, तो उन्होंने खूब सारी शॉपिंग की है और इसके बाद वैसे घर छोड़कर अपने घर जा चुके हैं। इसलिए यारम डायरेक्ट अपने घर ही आया था, लेकिन घर के दरवाजे पर कदम रखते ही इसका फोन बज उठा। सामने बेवकूफ पुलिस वाले का नंबर का नाम जगमगा रहा था। जल्दी बोलो सारम, मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिलहाल किसी से बात करने का मूड नहीं हो रहा, इसने बेजारी से कहा था। हाँ बिल्कुल, इन हैमानों के जिस्म के टुकड़े करते हुए हाथ में दर्द हो गया होगा ना, कहो तो मैं आकर दबा दूँ, इसने भरपूर डांस किया था। क्यों पुलिस वाले की नौकरी से रिटायरमेंट ले रहे हो? क्या जो किसी नई नौकरी की जरूरत पेश आ गई है? खैर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, अगर मूड बन गया तो तुम्हें इस नौकरी के लिए रख लूंगा। इसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तुम्हारा? तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने वक्त से इन लोगों को तलाश कर रहे थे? सारम को गुस्सा आने लगा। अगर तुम लोगों की तलाश नाकारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे हाथ आए मारे गए, और वैसे भी मैंने सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम अपने लंबे हाथों की मदद से बचा लेती ना इन लोगों को। यारम, तुम्हें एहसास भी है कि तुमने एक दिन में 11 लोगों का कत्ल किया है, और वो भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि जाने पहचाने मुजरम और कानून की नज़र में दरिंदे थे वो लोग। यारम अब संभल जाओ, अब तो छोड़ दो ये सारी चीज़ें, क्यों खुद को इस नल में फंसा रहे हो? क्यों नहीं छोड़ देते ये सारे काम? छोड़ दो सब कुछ यारम, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुद को देखो, रूह को देखो, एक नई ज़िंदगी शुरू करो। सारम, यारम, सारम यार, तुम तो अच्छे खासे बोरिंग इंसान हो, इतना फ्रेश मूड के साथ घर आया था, बेड़ा कर दिया मूड का। चलो मुझे
नसीहत हो गई, आज के बाद घर आते हुए कभी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊँगा। खैर मैंने एक फ़ाइल तैयार की है, इसके मुताबिक इन सब लोगों को ढूँढने में तुम कामयाब रहे हो, लेकिन अफ़सोस के तुम इन्हें बचा नहीं सके। तुम्हारी बहादुरी के किस्से ज़रूर चलेंगे, जानता हूँ कि तुमने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि ये केस मैं तुम्हारे अफ़सर के नाम कर दूँ। हो सकता है तुम्हें इस बार प्रमोशन मिल जाए। चलो अब मेरा दिमाग मत खाओ, गुड नाइट। फ़ोन रखते हुए दोस्ताना अंदाज़ में बोला था, लेकिन सारम आँखें से बिना कुछ बोले फ़ोन के अंदर से आती टू-टू की आवाज़ सुन रहा था। ये आज या कल की बात नहीं थी। यार को कुछ भी समझाना इसके बस से बाहर था, लेकिन वो फिर भी कोशिश नहीं छोड़ता था कि शायद वो इसकी बात को समझकर इन गुनाहों का रास्ता छोड़ दे। जिन लोगों को यार ने जान से मारा था वो यारम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, फिर भला क्या दुश्मनी थी यारम की इन लोगों के साथ। सारम को ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो पिछले कुछ अरसे से इसी केस पर काम कर रहा था और जल्द ही वो इन लोगों को गिरफ्तार भी करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि यारम ने इन्हें जान से मारकर रास्ते से हटा दिया और सारम की सारी मेहनत बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। घर में दाखिल होते ही इसे अपनी जान का चेहरा दिखना था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया, लेकिन सामने एक बार फिर से अपने हुक्म के खिलाफ इसे किचन में काम करते देखकर इसकी पेशानी पर बाल पड़ गए थे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि रूह इसकी कोई बात मान लेती। अगर इसकी जगह कोई और होता तो यारम इसे सबक जरूर सिखाता, लेकिन यहाँ तो वो थी जिसे पता था कि इसकी हर गलती की सजा माफी है। यारम काज़मी की अदालत में वो गुनाहगार होकर भी बेगुनाह थी। पहले तो यारम इसकी हर गलती की सजा अपने अंदाज में देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था, इसलिए तो वो बिगड़ गई थी, बल्कि बहुत बिगड़ गई थी। लेकिन वो अपनी रूह को हैंडल करना जानता था। अब वक्त आ गया था कि वैसे सुधारे, और बहुत जल्द ही वो इसे सुधारने वाला था। वो गुस्से से लब बेचता इसके सर पर सवार हुआ। ये सब क्या है रूह? जब मैंने तुम्हें काम करने से मना किया था तो तुम क्यों बाज नहीं आ जाती? वो सख्त लहजे में बोला था। लेकिन यारम आपने ही तो सुबह बोला था कि अब मैं ठीक हूँ, और अगर मैं ठीक हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना। वो मासूमियत से कहती इसके अल्फाज इसे वापस कर रही थी। हाँ कहा था मैंने कि तुम ठीक हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि किचन में पहुंच जाओ। अभी इतनी भी ठीक नहीं हो तुम, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। उफ यारम, ठीक तो ठीक होता है ना, इतना उतना नहीं, और मैं ठीक हूँ तो हूँ, इसीलिए तो मैंने आपके लिए ये बनाया है। वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर कहती इसे लाश से कुर्सी की तरफ खींचने लगी थी। यारम इसे घूरते हुए कुर्सी पर बैठकर बिरयानी अपनी प्लेट में निकालने लगा। चेहरे पर सख्ती थी, मतलब इसका मूड ठीक नहीं था। अच्छा ना, अब नहीं करूंगी कुछ भी, वादा बस आप इतने दिन से खाना बड़ाई नाम खा रहे थे तो मैंने आपके लिए ये बनाने का सोचा। अब से वादा जो आप कहेंगे वही करूंगी। वो यारम की प्लेट से खुद भी खाते हुए प्यार से बोली थी। खाने के बाद यारम ने खामोशी से प्लेट इसके पीछे करके इसे देखा था। चाय बनाओ, यारम ने कहा तो वो इसे हैरानगी से देखने लगी। जी, इसे लगा शायद इसने गलत सुना था। जी क्या? जाओ चाय बनाओ, अगर बिरयानी खाकर मुंह का जायका बदल ही दिया है तो एक कप चाय पी हो जाए। आखिर अब तुम ठीक हो चुकी हो, वो इसे देखते हुए बोला था। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। इसका अंदाज रुको पर सुकून कर गया था, वो इससे खफा नहीं था। रुख ने फौरन इसके लिए चाय बनाई थी, जो यारम ने पर सुकून होकर पी। बर्तन धोकर कमरे में आ चला, मैं जरा ऑफिस रूम में हूँ। पर नरमी से इसका गाल थपथपा कर चला गया। रुको यकीन नहीं आ रहा था कि यारम इसे इतना नॉर्मली ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब था कि सब कुछ ठीक हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, पहले जैसा। वो खुश हो गई थी। वो काफी देर के बाद कमरे में आई तो यारम अपना काम खत्म करके रूम में आ चुका था। इसने मुस्कुराकर इसे देखा, वो भी इसके करीब खड़ा था। वो भी इनके करीब खड़ा था। रुख ने गौर किया तो उसे पता चला कि वो उसकी मेडिसिन बिन में फेंक रहा था। आज की रात आखिरी थी इनकी मेडिसिन की, इसके बाद वो आज़ाद थी। लेकिन यार में से पहले क्यों फेंक रहा था? सोचा कि अब तुम ठीक हो गई हो तो इन मेडिसिन की तुम्हें क्या ज़रूरत? क्या ख्याल है? वो नरमी से कहता इसके पास आया तो रुख ने हाँ में सर हिलाया था। जब यारम ने झुककर इसे अपनी बाहों में उठाया, वो घबराई थी। यारम इसके लबों ने बेआवाज़ सरगोशी की। इश, तुम ठीक हो ना? अपनी बीवी के होने का फ़र्ज अदा करो। अपने वजूद से अपने शोहर को सुकून दो, ताकि इसे पता चल सके कि तुम कितनी ठीक हो। वह इसे बेड पर लिटाकर इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में ले चुका था। अपने यारम को सुकून दो रूह, वो बेसुकून है। इसका सुकून खो गया है। इसके चेहरे के एक नक्श को चूमते वो इसके कान के पास सरगोशी करने लगा था। तुमने मुझे बहुत सताया है रूह, अब मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। मोहब्बत की इस दरिया मोहब्बत के इस दरिया को इंतजार की सूली पर लटका कर समुंदर तुमने किया है, तो अब इस समुंदर में तुम्हें मेरा साथ डूबना भी होगा। इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते हुए उसके लबों को पूरी शिद्दत से कैद कर गया था। वो बिना मज़ाहमत किए इसकी बाहों में आ सिमटी, इसकी दीवानगी को अपनी रग रग में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। इसकी शिद्दतों में पिघलती वो पूरी तरह इसकी मोहब्बत में रंगने लगी थी। इसके सीने में मुँह छुपाए वो इसके जुनून में सांस लेने लगी थी, और यारम इसे खुद में समेटता अपना इश्क इस पर लुटाता चला गया था। वो इश्क यारम थी, यारम का इश्क, इसका जुनून, इसकी दीवानगी, इसकी मोहब्बत, इसकी रूह। वो रूह यारम थी, और यारम सरापा इश्क। वो इसकी बाहों में सिमटती आंखें बंद किए लेटी हुई थी, जबकि यारम अब भी इसे अपनी बाहों में भरे अपनी मोहब्बत की छाप छोड़े जा रहा था। इसकी दीवानगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात इसने इसके एक पल भी सोने नहीं दिया था। अब तो सुबह की अजान हुए भी काफी वक्त गुजर चुका था, और इस वक्त भी वो इसे अपनी बाहों में लिए अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। इतने दिन की दूरी का बदला यारम इस अंदाज में लेकर रुख ने सोचा भी नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि यारम अभी भी इसे मेडिसिन खिलाने वाला है, लेकिन ना जाने यारम के दिमाग में रात कौन सी बात समाई थी कि वो इसे हाथ दूरी को बुलाकर इसे खुद में समेटने लगा था। इसका
अंदाज शिद्दत इख्तियार किए हुए था। इसने रुख को अपने पुराने अंदाज में छुआ था, बिना इसे मज़ाहमत का मौका दिए वो इसे पूरी तरह खुद में कैद कर गया था। इतने महीनों से इसकी दूरी की वजह से रुख भी इसे मिस कर रही थी, इसलिए इसकी बाहें फैलाते ही वो इसकी मोहब्बत के सामने हार गई थी। इसके पुकारते ही वो किसी टूटी हुई डाल की तरह इसकी बाहों में आ सिमटी थी। वो खुद भी तो इसके पास आना चाहती थी, इसे भी तो इसका पुराना यारम चाहिए था, जो आज न जाने कितने महीनों के बाद मिला था, और अब इसका हक अपना और अब इससे अपना हक वसूल कर रहा था। रुख टूटी बिखरी हालत में इसके पहलू में खामोशी से लेटी इसकी लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, और फिर वो मदहोश होते हुए इसके होश ठिकाने लगाने लगा। यार मुझे नींद आ रही है, रुख ने इसका हाथ थामते हुए बताया था। अंदाज में भला की मासूमियत थी। यारम ने एक नजर के हसीन चेहरे को देखा, अपने मौकों पर वो इसे नजर मिलाकर बात नहीं करती थी। इस वक्त भी गनी पल के गालों पर सजदा रेस थी। गाल सुर्खी छलक रहे थे। इसके वजूद का एक एक हिस्सा यारम की दीवानगी की दास्तान सुना रहा था। मैं भी तुम्हें नींद बहुत आती है, अपनी इस नींद पर काबू करो। मैं अपना सेकंड हैंड मूड तुम्हारी नींद की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। इस बार अगर तुम मुझे वहां सोती हुई मिली ना, तो बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। और फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिलहाल मुझे मेरी बीवी को बहुत सारा प्यार करना है, और इसे सीधा भी करना है। वो क्या है ना, पिछले 3 महीने में वो बिगड़ गई है। वो कहते हुए इसकी गर्दन पर होंठ रख चुका था। इसकी गर्म सांसों की तपश में चलती रुख ने एक बार फिर से एहतजाज किया। यार मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी, इसे सख्त में बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। यारम ने सारी रात इसे एक पल को भी सोने नहीं दिया था, और अब नींद से इसका बुरा हाल हो रहा था। लेकिन यारम को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी तशनगी मिटानी थी, जो कल रात से अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कम होने के बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही थी। वो इसे पाकर भी प्यासा था, इसकी तलब खत्म होने का नाम नहीं लेती थी, और ना ही शायद खत्म होनी थी। लेकिन रूह की इसकी नींद से बेरही आंखें देखकर इस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल इसे बख्शने के मूड में नहीं था। 10 बजे मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है, मैं काम पर जाऊंगा, तो मेरे वापस आने तक अपनी नींद पूरी कर लेना। और हाँ, अब मुझसे बचने के लिए कोई और बहाना बना लो। ये नींद का बहाना पुराना हो चुका है, और ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना फिर तुम शिकायत करोगी। तो इसे वार्न करते हुए इसके लब्बों पर झुका था। इस बार रुख कुछ भी नहीं बोल पाई थी, जानती थी कि बोलना फजूल है, वो अपनी करके ही दम लेगा। और ये सच भी था कि इसे वक्त के बाद यारम को इतने करीब महसूस करके वो खुद भी से दूर नहीं जाना चाहती थी। यारम का जुनून, इसकी दीवानगी, इसका शिद्दत से बड़ा लम्स जो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था, और सिर्फ और सिर्फ इसी का तो था। सिर्फ इसे मोहब्बत करने वाला, सिर्फ इसी को चाहने वाला, सिर्फ और सिर्फ रूह का यारम। वो कैसे इसे मायूस करती, कैसे इसे दूर जाती। वो तो खुद इसकी पनाहों में आने के लिए मचल रही थी, और यारम अब करम बना इस पर बरसता चला जा रहा था। रूह इसकी मोहब्बत की बारिश में बिकती सारी जहां फरमोश किए हुए थी। इस वक्त दिलो दिमाग की तमाम डोरियों पर सिर्फ और सिर्फ यारम का कब्जा था। वो ना तो इसे अपने अलावा कुछ सोचने देना चाहता था, और ना ही खुद इससे दूर जाना चाहता था। इसे अपनी बाहों में लिए वो इसकी सांसों पर अपनी हुकूमत चला रहा था। इस अपने पिछले 3 महीने की बेचैनी को मिटा रहा था, अपनी बेकरारियों को सुकून दे रहा था। वो डर जो 3 महीने पहले रूह को खो जाने का इसके दिल में बसाया था, आज यारम इसे अपने बेहद करीब करके अपना वो डर मिटा लेना चाहता था। पिछले 3 महीने जिस हिसाब में इसने काटे थे, इसके बाद वो शायद ही रूह से दूर जाता, और जितना रुख ने इसे सताया था, इसके बाद ये इतनी सी सजा तो बनती ही थी। यारम के मना करने के बावजूद भी वो जिद करके इसके लिए नाश्ता बनाने लगी, तो यारम ने भी इसे मना नहीं किया था। इसने फैसला कर लिया था कि अब वो रूह पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, और वो जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है वैसे ही जिंदगी गुजारेगी। अब इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी वो एक बीमारी, और ऊपर से बेफजूल की पाबंदियां। अब यारम अपनी रूह को मुकम्मल इसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहता था। इसने रूह को बोल दिया था कि वो जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही करे, वो इसे मना नहीं करेगा। पहले तो रूह इसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था, लेकिन जब इसने रूह को नाश्ता बनाने की इजाजत दी, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। इसको अभी बहुत वक्त के बाद महसूस हुआ था कि वो ठीक हो चुकी है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जब तक यारम फ्रेश होता, तब तक रूह इसके लिए नाश्ता बनाने में मगन हो गई थी। आटा गूंथकर इसने यारम के लिए बहुत मोहब्बत से पराठा बनाया था, और अब वो इसके लिए ऑमलेट तैयार कर रही थी कि अचानक निखरा निखरा सा यारम किचन में आया, और उसे पीछे से अपनी बाहों में कैद कर लिया। यारम क्या कर रहे हैं? मैं नाश्ता बना रही हूँ, खराब हो जाएगा। इसकी कल रात की जसारतों से वो संभली ही कहाँ थी कि वो अब इसकी मजीद बेबाकी को सहती। लेकिन यारम तो जैसे इसकी बात को सुनना ही नहीं चाहता था। वो अपने होंठ इसकी गर्दन पर रख चुका था। रुख ने मुड़कर इससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की गिरफ्त सख्त होने की वजह से वो हिल भी ना सकी थी। यारम ये क्या, अब क्या कर रहे हैं? अब तो तैयार होने गए थे ना? बस सिर्फ नहा कर आ गए। चाहे जल्दी से तैयार हूँ, आपको काम पर जाना है। फिर कल सुबह की फ्लाइट से हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर काम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं रहेगा। जितना भी जरूरी काम है आपने निपटा कर आ जाए। इसकी बढ़ती हुई बेबाकियों से घबरा कर रुख ने इसे याद दिलाया था कि वो किसी काम के लिए यहाँ से जाने वाला था, लेकिन यारम पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो जैसे इसकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा था, बस अपने काम में मगन था। और उसकी बढ़ती हुई जसारतों पर रूह की सांसें तेज होने लगी थी। रूह का दुपट्टा इसकी कमर से खोलकर इससे दूर कर चुका था। इससे पहले कि बस रुख अपनी जानिब मोड़कर मजीद कोई गुस्सा ही करता, इसका खून बचने लगा। जैसे वह नजरअंदाज करता, वो अपने काम में मगन था। रुख
तो इसके बहकाने पर घबरा गई थी। रात की जसारतों को याद करते हुए कोई बहाना सोचने लगी कि यारम का फोन फिर से बजने लगा था और फिर मुसलसल बजते हुए यारम के काम में हलचल पैदा कर गया। इसने गुस्से से फोन को देखा था। रुख ने सुकून का सांस लिया जबकि यारम का मूड बिगड़ चुका था। क्या हुआ शारफ, कोई मर गया है क्या जो तुमसे सब्र नहीं हो रहा? वो गुस्से से फोन कान से लगाए बोला था। नहीं यारम, तुमने ही तो कहा था कि काम होते ही इन्फॉर्म करो। शारफ इसका गुस्सा देकर मासूमियत से बोला था। इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। बेवकूफ आदमी, अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। यारम को समझ नहीं आया कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करे। यारम, इन्फॉर्म करते हुए डिस्टर्ब तो करना पड़ता है ना। शारफ ने सफाई पेश करते हुए कहा था। दिमाग मत खराब करो, फोन बंद करो, अब डिस्टर्ब मत करना। और फोन रखते हुए वन कर वो इस फोन रखते हुए से वन कर रहा था और शारफ इसकी बात को समझ गया था। अगर ना समझता तो आज चांद से जाता। फोन बंद करके वो किचन में आया तो रुक गायब थी। नाश्ता टेबल पर रखा था, साथ एक छोटी सी चिट थी। खुदा का वास्ता है यारम, अब नाश्ता करे और काम पर जाए, मुझे आराम करना है। चिट को पढ़ते ही यारम का कहका बुलंद हुआ था। बेबी, तुम तो बहुत जल्दी घबरा गई, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तुम्हें पता चलेगा कि यारम का में से पंगा लेकर नींदें कैसे आती हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए मेज पर रखे नाश्ते को देखते हुए कुर्सी घसीट कर बैठा और सुकून से नाश्ता करने लगा। कल से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बहुत पुरसुकून था। रूह को अपनी मोहब्बत में रंगने के बाद इसे बहुत सुकून मिला था। कल की फ्लाइट से वो लोग स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने वाले थे। वो जानता था कि रूह सारी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। डार्लिंग, तुम तो यहाँ से ही मुझसे भागने लगी हो, वहां जाकर तुम्हारा क्या हाल होगा। आने वाले वक्त का सोचकर इसने एक नजर अपने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा था। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में आया तो रूह को गहरी नींद सोते हुए पाया था। वो मुस्कुराते हुए वार्डरोब के तरफ आया और अपने कपड़े निकाल कर तैयार होने लगा। फिलहाल तो रूह को तंग करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। कल रात की वजह से वो चाह सा थक चुकी थी और वो इसे काफी तंग कर चुका था। अब अगला डोज वो इसे हनीमून पर देना चाहता था। मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बहुत सारे तक कमरे का दरवाजा बंद करके वो अपने काम निपटाने चला गया था। आज छोटे मोटे सारे काम खत्म करने थे क्योंकि इसे अगला तमाम वक्त सिर्फ और सिर्फ रूह के नाम कर देना चाहता था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी जब अचानक से अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इसे लगा वो इन सीढ़ियों से नीचे गिर जाएगी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसका बाजू थाम कर इसे गिरने से बचा लिया था। इसने एक नजर अपने बाजू की जानिब देखा जहां दर्द की सख्त गिरफ्त थी। इसके बाजू के सहारे वो सीधी हुई तो अब भी अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। उफ, ये क्या हो गया था? आज से पहले तो मासूमा ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। शायद ठीक ही कहता है, मुझे उल्टा सीधा नहीं खाना चाहिए। इसने अपना घूमता हुआ सर थाम कर सोचा था। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे ख्याल में तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मासूमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगी थी। वो किसी की परवाह नहीं किया करता था और ना ही से लोगों से घुलना मिलना पसंद था। वो बहुत कम लोगों से बात करता था। यहाँ फ्लैट के लोग तो इसे खरूस कहकर पुकारते थे और इसकी पीठ पीछे काफी बातें भी करते थे, लेकिन इसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन अपने काम से काम रखने वाला एक इंसान था। लेकिन मासूमा ने शोनू के साथ इसका काफी लगाव महसूस किया था और शायद इस वक्त भी वो शोनू के लिए ही थोड़ी बहुत इंसानियत दिखा रहा था, वरना यहाँ इसकी बला से कोई जिए या मरे। नहीं, मैं ठीक हूँ, लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बस इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। मासूमा कहकर आगे बढ़ने ही लगी थी कि इसका सर एक बार फिर से घूम गया था। दर्द ने बर वक्त इसे थाम लिया, वरना इस बार वो बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली थी। आओ, मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ आता हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ गिर कर तुम अपनी हड्डियां तुड़वा लो। पता नहीं लड़कियों को क्या क्रेज होता है इतनी ऊंची सैंडल पहनने का। वो बड़बड़ाता हुआ इसका बाजू थमकर इसकी फ्लैट तक छोड़ने के लिए अंदर तक आया था। थैंक यू सो मच दर्द, तुमने मेरी बहुत मदद की। वो इसका बाजू थामे इसे सोफे पर बिठाकर पलटा ही था कि मासूमा बोली, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की मासूमा, और ये कोई एहसान नहीं है। तुम गिरती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी जगह अगर कोई और होता तो यकीनन तब भी मदद करता, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में हर काम क्यों करती हो? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो वाटर कूलर से पानी का गिलास पर इसके सामने रखते हुए कहने लगा था, अपना फोन दो, तुम्हारे शोहर को फोन करके तुम्हारी तबीयत की खराबी का बता देता हूँ। इसके अंदाज में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी। वो अनजान सा शख्स अनजान बनकर ही रहना चाहता था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद इसे फ़ोन पर करके बता दूंगी। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आज तुम पहली बार मेरे घर आए हो। मासूमा ने मेहमान नवाजी की खातिर कहा था। अपनी हालत देखो, लड़की सीधे तरीके से चल नहीं सकती और तुम्हें मेरी खातिरदारी करनी है। खैर, मैं चलता हूँ, तुम अपने शोहर को इन्फॉर्म कर देना। उठकर जाते हुए कहने लगा था, हाँ ठीक है, जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी क्योंकि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अगले 20 दिन के लिए शोनू मेरे पास आ रहा है। इंसानों से न सही लेकिन जानवरों से काफी बनती है तुम्हारी। मासूमा ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्यों, तुम्हारी सहेली कहाँ है जो इसका डॉग तुम यहाँ ला रही हो? वो अपने शोहर के साथ स्विट्जरलैंड जा रही है 20 दिन के लिए, तब तक शोनू मेरे पास ही रहेगा। तुम जब चाहो इससे मिलने आ सकते हो, तुम्हारे साथ वो वैसे भी बहुत अटैच है। मासूमा ने खुशदिली से कहा था, जबकि वो सिर्फ सर में
जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता इसके घर से बाहर निकल गया था। मासूमा सोनू का बहुत ख्याल रखना, मैं फोन करती रहूंगी। वो सोनू को मासूमा के हवाले करते एक बार फिर से हदायत देने लगी थी। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। इसे मिलते हुए मासूमा एक बार फिर से यकीन दिलाया था। बस करो रुक, कोई अपनी औलाद को रुखसत करते हुए भी इतना नहीं सोचता जितना तुम सोनू को मासूमा के हवाले करने पर सोच रही हो। वो पहले भी इसका ख्याल रखती आई है। अब चलो तुम्हारा ये जज्बाती सीन देखकर यारम देखो कैसे घूर रहा है। लैला ने इसे चुटकी काटते हुए इसका ध्यान यारम की जानिब दिलाया था, जो एयरपोर्ट के बाहर खड़े मुसलसल से घूर रहा था। कोई भी मसला हो तो मुझे फोन करना और शारफ का ख्याल रखना। सारम की नजर एक बार फिर से सारम की नजर एक बार फिर से इस पर है। यारम ने बताया कि इंस्पेक्टर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्या बिगाड़ा है मैंने इसका। शारम पर मजा हुआ था, काश मैं पाकिस्तान में होता तो फ्रूट की रेडी लगा लेता, कम से कम इस इंस्पेक्टर की नजर से तो दूर रहता। सारम की एक बार फिर से इस पर नजर थी, मतलब वो फिर से इसे किसी न किसी चक्कर में वसाकर जेल की हवा खिलाना चाहता था। जेल में वो इस तरह अपना हाथ साफ करता था कि यारम के सारे बदले इस पर तो निकालता था वो। खैर तुम किसी किस्म की कोई बेवकूफ़ी मत करना, कुछ नहीं होता। वो रुको अंदर चलने का इशारा करते हुए इसे अपने गले से लगाकर हिम्मत देकर बोला था। मासूमा को डॉक्टर के पास लेकर जाना, फैमिली के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज़, इसकी तबीयत खराब है। यारम ने इसका ध्यान मासूमा की तरफ लगाया तो उसने हाँ में सर हिलाया था। हाँ, यहाँ से सीधा इसे अस्पताल लेकर जाऊंगा, शारफ ने कहा, जबकि यारम सर हिलाता रूका हाथ थामे एक नए सफर पर निकल चुका था। वो कब से इसका चेहरा देख रहा था, जबकि रूका सारा ध्यान खिड़की से बाहर की जानिब था। यारम ने पहले रुकी और फिर अपनी सीट बेल्ट बांधी थी। जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था। यारम ने रूका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया, चाहता था कि इसे डर लगेगा, जबकि इसके तहफ़्फ़ुज़ बड़े अंदाज पर रूह ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। डर लग रहा है, यारम ने प्यार से पूछा तो रूह ने नाम में सर हिलाया था। आप जब भी साथ होते हैं ना यारम, मुझे डर नहीं लगता। इसके अंदाज में एक मान था जो इस पर जचता भी था। अच्छी बात है, मेरे होते हुए तुम्हें डर लगना भी नहीं चाहिए। यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। जहाज के उठते ही इसने रूह को अपने मज़ीद नज़दीक कर दिया था, जबकि रूह भी इसके हाथों को मजबूती से थामे इसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि ये लम्हा इसे सचमुच में खौफजदा कर देता था। लेकिन यारम का इसके साथ होना इसके डर को कहीं छुपा लेता था। यार ये आइसलैंड की बहन क्या बहुत खूबसूरत है। रुख ने अपने दिल में मचलते सवाल को लोगों पर लाया था। तुमने इसे पक्का ही आइसलैंड की बहन बना दिया है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। यार ने मुस्कुराते हुए इसकी बात का जवाब दिया था। आइसलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। रुख ने एक्साइटेड होकर पूछा था। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसका सफ़र कितना लंबा है? आइसलैंड तो बहुत दूर है, लेकिन वहाँ के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते थे। क्या इस मुल्क के बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं? रुख ने कुछ देर के बाद सवाल किया था। ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जानता हूँ मैं, क्योंकि इत्तेफाक से मैं सिर्फ 2 बार ही स्विट्जरलैंड जा पाया हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट इस मुल्क की पैदावार है। दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट यहीं पर पाई जाती है और यहीं बनाई जाती है। तुम्हें और कुछ नहीं मिले, तुम्हें और कुछ वहाँ मिले या न मिले, लेकिन तुम्हारी फेवरेट हर चॉकलेट तुम्हें वहाँ आसानी से मुयसर होगी। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग नहीं पाए जाते, लेकिन ये जगह अपनी मिसाल खुद है। दुनिया में कुछ जगहों को जन्नत कहा जाता है, इनमें से एक जगह यह मुल्क भी है। बहुत क्राइम न होने के बराबर है। इसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट भी है। यहाँ के लोगों को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ तक कि शहर के पहाड़, रास्ते और दूसरी हर जगह को साफ सुथरा रखा जाता है। इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन गंदगी और आवाज़ की वजह से पैदा होता है। रात के वक्त यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की जाती। यही वजह है कि यहाँ रात के वक्त ना तो कोई फ्लाइट आ सकती है और नहीं जा सकती है। रात के वक्त यहाँ लोगों के पालतू जानवरों को मुँह में मास्क लगा दिए जाते हैं ताकि वो आवाज़ पैदा ना करें। ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, आवाज़ पैदा करके चलना, ये सब इनके असूलों के खिलाफ है, जिन पर सख्त जुर्माना होता है। और अगर इनके असूलों पर न चला जाए तो जेल भी हो सकती है। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया तो वो उसे घूर कर देखने लगी थी। ये क्या बात है, मतलब बोलचाल ही बंद है तो बंदा और क्या करेगा। रुको, इसका ये असूल काफ़ी अजीब लगा था। रात के वक्त और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं ना बेबी, जैसे कि एक दूसरे से प्यार करना। यारम शरारती अंदाज में कहता आंख दबा गया, जबकि इसकी यूं बेबाक खुली आम गुफ्तगू पर रूह के कान की लो तक सुर्ख हो गई थी। यारम कितने बेशरम इंसान है आप, जगह का तो होश कर ले। वो अपना चेहरा झुकाए इसे डांट तक न पाई थी। अपनी बीवी से बात करते हुए कहीं का होश क्यों करूं, और वैसे भी बेशर्मी वाली कौन सी बात है, वो लोग यही सब कुछ तो करते हैं, वरना रात के वक्त और क्या किया जा सकता है। खामोशी से यारम ने शरारत से कहा था। सोया भी तो जा सकता है ना, रुख ने मुंह सूट कर बताया। हाँ यार, कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ जो सो जाते होंगे, लेकिन जिसके पास इतनी हसीन बीवी हो, इसे भला सोने की क्या ज़रूरत है। लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं सो सकता। मुझे तो मेरी बीवी से प्यार करना होता है, वो भी बहुत सारा, इसलिए मैं सोकर ऐसा चांस मिस नहीं कर सकता। आप बहुत खराब हैं यारम, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, परे हटे, सोने दे मुझे। वैसे थोड़ा फासला कायम करते हुए कहने लगी तो यारम हंस दिया था। हाँ, बहुत खराब हूँ मैं, लेकिन मजाल है जो तुम मुझे थोड़ा सा प्यार करके ठीक कर दो। है सो जाओ, जितना सोना है सो लो, लेकिन अब बताओ जो तुम वहाँ जाकर सोने की जरा सी भी कोशिश की, मैं बता रहा हूँ, मैं
میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا اگر تم نے میرے ہنی مون کو ذرا سا بھی بگاڑنے کی کوشش کی اپنے سونے کی لت سے۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے سونے کی لت ہے؟ رکو صدمہ ہوا تھا، اور نہیں تو کیا، جب دیکھو سوتی ہی رہتی ہو۔ مجال ہے جو کبھی جا کر میں جذبات کا احترام کیا ہو اب وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ یار آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں اتنا بھی نہیں سوتی، اور کب میں نے آپ کے جذبات کا احترام نہیں کیا؟ نہ صرف آپ کے جذبات کا احترام کیا ہے بلکہ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا نبھائی ہے، کبھی آپ کی بات کی نفی نہیں کی، کبھی آپ کا کوئی حکم نہیں ڈالا۔ بس میری ایکسٹرا فرمانبردار بیوی، یہ سب کچھ تم میرے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے اور جنت کے لیے کرتی ہو۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حکم میں شامل نہ ہو تو مجھے منہ بھی نہ لگاؤ۔ نہ جانے کہ وہ فضول ہی اسے باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ جی نہیں، یہ سب کچھ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔